Good morning. Good morning to all of you. मेरे बैग की पहली वाली जेब में जो मेन फ्रंट है उससे। सो इन लास्ट लेक्चर मैंने आपको थोड़ा सा हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल HDLC के बारे में बताया था, तो आज उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज ऑफ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इट इज द टाइप ऑफ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। उसमें हमने आपको 4 टाइप बताए थे। फर्स्ट वन वाज SDLC, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल। सेकेंड वन इज HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। देन LAP, लिंक एसेस प्रोसीजर, बैलेंस्ड वर्जन एंड योर LAN। अभी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। एंड योर LAN। So the main important part of HDLC is to control the flow of data, as well as also it is important for data link control protocol. HDLC is widely used in the basis for many other important शुभांगी देर होगी बेटा many other important data link protocol which use same or similar format in some other mechanism. There are various types of station, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टेशन। प्राइमरी स्टेशन इज आल्सो नोन एज कंट्रोल स्टेशन। प्राइमरी स्टेशन इज आल्सो नोन एज कंट्रोल स्टेशन,
means this station is responsible for controlling the operation of any link. Link means whenever you want to send any data from one station to another station, there may be some mechanism by which they can connect to the sending the data from one station to another station. Means connection or medium or link between two stations. Means the station manage data flow by issuing different commands to other station and acting according to their response also. So this is primary station. Second one is secondary station. सेकेंडरी स्टेशन या गेस्ट स्टेशन आप कह सकते हैं इसको. दिस इज योर गेस्ट स्टेशन. दिस स्टेशन ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइमरी स्टेशन. मीन्स द सेकेंडरी स्टेशन रिस्पॉन्ड टू कमांड इशूड बाय अ प्राइमरी स्टेशन. ये रिस्पॉन्स करता है, एक्नॉलेज करेगा कि वॉट एवर पैकेट इज रिसीव्ड, वेदर पैकेट इज लॉस्ट or it is orphan packet received by the station, all our response is sent by the secondary or guest station. Third one is combined station. Means this station combine the feature of primary and secondary. दोनों के फीचर को एक कंबाइन करता है. A combined station में issue both commands. Means it can also send request, send any order or command and also ये response भी create करता है. जो इस टाइप का आपका स्टेशन होता है कंबाइंड स्टेशन, ये दोनों टाइप के मैसेजेस को कंट्रोल करता है. मीन कमांड या ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो सेंड एंड आल्सो रिस्पॉन्स एक्नॉलेजमेंट इज आल्सो सेंड टू अदर स्टेशन अकॉर्डिंगली. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द सम इंपॉर्टेंट मोड्स इन HDLC. फर्स्ट वन इज मोड्स ऑफ HDLC इन ट्रांसफर ऑफ डेटा. Beyond the different type of transfer mode of any communication system, जिसमें कि आपका सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, देयर आर सम अनदर डेटा ट्रांसफर मोड यूज्ड इन स्पेशली HDLC. फर्स्ट वन इज नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड. नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड NRM. This is the first one used in your HDLC frame. This is used with an unbalanced configuration. It is only used when there are unbalanced configuration in any network establishment. The primary station instructs to the secondary station and then the secondary station can transmit the data. It is not balanced. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी शो कर सकता हूं कि कैसे यहाँ पे डेटा आपका सेंड हो रहा है. सपोज करिए कि यहाँ पे एक आपका प्राइमरी स्टेशन है. आंसर होगी बहुत देर कर दी बेटा. दिस इज प्राइमरी स्टेशन. This is primary station. This is your secondary station. Today's some problem because आज हम लोग को सडनली कॉलेज आना पड़ा है. इसलिए कॉलेज में भी जब आए तो यहाँ पे प्यून वगैरह नहीं थे. क्लासरूम ओपन होने में भी टाइम कंज्यूम हो गया. राइट वाइट थोड़ा सा डिले हुआ है. दिस इज योर प्राइमरी स्टेशन. दिस इज योर सेकेंडरी स्टेशन. तो कमांड्स is issued by the primary station and response is sent by the secondary station to the primary station against the command issued by primary station. This is your response या acknowledgement.
तो दिस मेथड इज नोन एज आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड. दिस इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक in which primary station communicate with a single secondary station. There are also some situations when primary station can communicate with several secondary station. This type of possibility जब अगर होती है तो वहां पे भी ये आपका configuration establish होता है कि primary station is one and there are several secondary system. Means broadcasting कर दे रहा है all the station which is all are established in your network configuration. Okay, second one is asynchronous. देखिए अभी जो है लगभग 9:35 9:33 के आसपास आपका एक टेस्ट भी है, तो मैं उसका टाइम थोड़ा बढ़ा दूंगा. क्लास के बाद ही आप उस टेस्ट को हैंडल करिएगा. मैं उसका टाइम आपका सबमिशन टाइम बढ़ा दूंगा तो वो डिले नहीं दिखेगा. एसिंक्रोनस रिस्पांस मोड, बिकॉज वो ऑलरेडी एडवांस में शेड्यूल था बट यहाँ पे थोड़ा डिले हो गया है. एसिंक्रोनस रिस्पांस मोड विद एन अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन विच इज आल्सो एब्रिविएटेड एज ARM, asynchronous response mode. This involves communication between primary and secondary station in independent मोड में. ये आपका जो ट्रांसफर मोड होता है ये इस्टेब्लिश होता है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड. थर्ड वन इज एसिंक्रोनस balanced mode. Unbalanced is already discussed. Balanced mode, that is your ABM. देखिए ये वाला आपका सिंक्रोनस के लिए, जो फर्स्ट वन वाज था नॉर्मल रिस्पांस मोड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द कॉन्सेप्ट ऑफ FDDI वेयर टाइमर्स आर अलाउड, जहां पे आपको टाइमर्स अलाउड कर दिया गया था. एंड आल्सो अलाउड विद इन योर टाइम you are required to send your data which is synchronous, sophisticated and important data. तो पहले जब whenever you capture any token, first priority is to send your data which is in synchronous mode, sophisticated and important data. After that जो भी आपका डेटा बचता है या कुछ बचे हुए पैकेट्स होते हैं तो लीस्ट प्रायोरिटी के डेटा या पैकेट्स को, जिनको हम लोग कहते हैं एसिंक्रोनस डेटा, एसिंक्रोनस को ही सेंड करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड है, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड का मतलब सिंक्रोनस डेटा, सिंक्रोनस मोड ऑफ ट्रांसफर. और बाकी ये दूसरा वाला एसिंक्रोनस जो कि लीस्ट प्रायोरिटी का और ऑर्डिनरी डेटा. एसिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड, एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड. दिस इज यूज्ड इन बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन. कंबाइंड स्टेशन मीन्स जहां पे आपके कमांड और रिस्पॉन्स दोनों कैन बी इनिशिएटेड. इन दिस केस आइदर कंबाइंड स्टेशन में इनिशिएट ट्रांसमिशन विद द स्टेशन विदाउट परमिशन और आल्सो विद परमिशन. मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एसिंक्रोनस डेटा होता है. इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट और नॉट सोफिस्टिकेटेड, सो देयर इज नो नीड टू wait for acknowledgement or the permission from the other station. Whatever this station is ready to receive the data, ये जरूरत नहीं आपको इंश्योर करने की, आप डायरेक्टली इसको सेंड कर दीजिए एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट. तो ये वो खुद ही अकॉर्डिंग टू जैसे ही उनके पास डेटा आ जाएगा, डेटा रीड हो जाएगा डेस्टिनेशन एंड पे, डेस्टिनेशन साइट पे, वो एक्नॉलेजमेंट ऑटोमेटिकली वो सेंड कर देंगे या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी वहां पे जनरेट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट कम टू द डिफरेंट फील्ड एंड डिफरेंट फ्रेम ऑफ HDLC. Frame of HDLC. There are three frames of HDLC. First one is I frame, known as information frame. Second one is S frame. This is supervisory frame. Control the information and control the flow of data. Also error control
is carried out in this particular supervisory frame. And third is unnumbered or future use for the frame, in which all the management, connection management, data management, frame management, all important task is carried out. जो आपका U फ्रेम होता है, तो मैं आपको एक जनरल फ्रेम बताता हूं जो I फ्रेम आपका है. I is your information frame, S is your supervisory frame, U is unnumbered फ्रेम. जैसे इसको डिस्कस करते जाएंगे इनके रोल हम डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे. मेन है आपका I फ्रेम. इसका फ्रेम फॉर्मेट जरूर देख लीजिए. इट इज वेरी सिंपल फ्रेम फॉर्मेट. फर्स्ट वन इज योर फ्लैग, सेकेंड वन इज योर एड्रेस, थर्ड वन इज कंट्रोल, फोर्थ वन इज योर डेटा ऑब्लिक इंफॉर्मेशन, फिफ्थ वन इज FCS, एंड लास्ट में भी एक फ्लैग होता है. इनके बिट्स भी बहुत आसान होते हैं. ये 1 बाइट का होता है, यानी 8 बिट होगा. ये आपका 1 to 2 बाइट का होगा. 1 to 2 बाइट मीन्स 8 to 16 बिट्स. कंट्रोल इज आल्सो 1 to 2 बाइट. डेटा और की और इंफॉर्मेशन की कोई ज्यादा लेंथ फिक्स नहीं होती है. मैक्सिमम आप 4500 बाइट सेंड कर सकते हैं, 1 to 4500. और जो आपका FCS होता है, कंट्रोल जो होती है फ्रेम कंट्रोल स्टेटस, दिस इज 2 to 4 बाइट एंड दिस इज 1 बाइट जो आपका लास्ट वाला फ्लैग होता है. दिस इज ऑल अबाउट योर इंफॉर्मेशन फ्रेम. द फर्स्ट फील्ड विच इज योर फर्स्ट frame format of the HDLC of I frame. This contains 8-bit or 1-byte sequence with a special bit pattern. Special bit pattern जो आपका होता है 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 1 होंगे and 0. ये इसका फिक्स पैटर्न होता है. ठीक है, फ्लैग का. The flag field marks the beginning and end of each frame and contains the special bit pattern like this. This is reserved for flag field. At station or any station receiving this pattern known as HDLC frame is on the way. Since the frame size may vary, the station examines arriving bits and looks this pattern to detect the frame's end. There are also special frame format or bit pattern in data information in HDLC. Bit pattern, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी डेटा होता है उस डेटा में आफ्टर द 5 कंसेक्यूटिव 1 एक 0 ऐड हो जाता है. एक 0 ऐड कर दिया जाता है to protect unauthorized person to access your frame or data and prevent from the error also. इसमें जैसे आपका कोई भी सपोज मैसेज आप देख लीजिए. सपोज करिए ये एक मैसेज है 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0. ये आपका एक मैसेज है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 बिट का मैंने एक आपको मैसेज या डेटा इंफॉर्मेशन मैंने सेंड की है. तो इसमें अकॉर्डिंग टू द स्पेशल बिट पैटर्न, इसमें क्या होता है कि जितने आपके नंबर ऑफ वंस हैं उसमें से आप काउंट कर लीजिए एंड आफ्टर द फिफ्थ वंस जो आपके फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव वंस हैं उनके बाद 0 आप ऐड कर देते हैं. तो जो न्यू पैटर्न हो जाएगा दैट इज 0 1 1 1 1 1 एंड 0. देन 1 0 1 1 0 1. एक एक्स्ट्रा 0 हमेशा
5 कंसेक्यूटिव 1 के बाद ऐड कर दिया जाएगा, देन ओनली योर फ्रेम इज रेडी, योर डेटा इज रेडी टू सेंड द रिसीवर एंड. दिस प्रोसीजर इज नोन एज बिट स्टफिंग. दिस इज नोन एज बिट स्टफिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय बिट स्टफिंग? Which protocol is responsible to do the bit stuffing? यानी SDLC is responsible, and also which frame is responsible? Bit stuffing duty is carried out by which frame in SDLC? क्योंकि there are 3 frames: information frame, supervisory frame, and unnumbered frame. अब इन तीनों का हम डिटेल में रोल एक्सेस करेंगे और डिस्कस भी करेंगे. तो जो आई फ्रेम है, इंफॉर्मेशन फ्रेम है, मेन उसका ही ये रोल होता है कि इसमें जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, डेटा है, आफ्टर द 5 कंसेक्यूटिव 1 0 इज एडेड. ठीक है. सपोज करिए जैसे ये वाला हमने आपको बताया था, आप दूसरा एक मैसेज आप देखिए, 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5. ठीक है. उसके बाद 0 1 1 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब इस मैसेज को आप देखिए, ये वाला मैसेज देखिए, 1 2 3 4 5. यहां पे 5 जो ये आपका ओरिजिनल डेटा है, यहां पे 5 कंसेक्यूटिव 1 है, उसके बाद 0 है. इन स्पाइट ऑफ after the 5 consecutive 1 there are 0 according to the bit stuffing. तब भी हम इसमें 0 एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे. तो now your bit is, your data is now 0 1 1 1 1 0 0 जो कि हमने ऐड किया है. यहां पे भी हमने ऐड किया था, यहां पे भी हमने ऐड कर दिया. दैट्स वाई मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिया 1 1 1 0 and 1. मतलब यहां देखने के बाद कि आपको लग रहा है कि आफ्टर द 5 कंसेक्यूटिव 1 देयर इज 0, स्टिल इसके बाद भी आप उसमें अपना, क्योंकि आपको बिट स्टफिंग का फॉर्मेट फॉलो करना है, एक एक्स्ट्रा 0 आप ऐड कर देते हैं. यानी पैटर्न में हमारे कोई चेंज नहीं होगा कि भले ही वहां पे 0 अवेलेबल हो आफ्टर द 5 कंसेक्यूटिव 1, तब भी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ बिट स्टफिंग, क्योंकि डेटा हमको इसी फॉर्मेट में ही सेंड करना है, इसी फ्रेम के थ्रू ही सेंड करना है आई फ्रेम में, तो इसको फॉलो करेंगे. इसलिए 0 हमने इसके बाद भी यहाँ पे ऐड कर दिया. दिस इज नोन एज, दिस टेक्निक इज नोन एज बिट स्टफिंग. यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए, क्योंकि ये जरूर आएगा. आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. अभी आप उसको सॉल्व मत करिए, मैं उसका टाइम बढ़ा दूंगा. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टुडे हम सभी लोग पूरा डिपार्टमेंट आज कॉलेज में आए हुए हैं, और यहाँ पे जब आए तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी हेल्पर वगैरह नहीं थे, तो शेड्यूल करने में थोड़ा टाइम हो गया. दैट्स वाई 15 मिनट डिले मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया है. बट ये जो टेस्ट है सीपी का, ये सीपी का टेस्ट है, जो हम लोग सीपी एक्टिविटी लेते हैं उसका फर्स्ट टेस्ट है. इसको हमने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा था. दैट्स वाई वो आपके पास मैसेज आ गया होगा. अभी आप क्लास कर लीजिए, मैं उसका सबमिशन का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दूंगा. डोंट वरी, पहले लेक्चर कर लेते हैं. ये आप देखिए, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आओ तो तुरंत पूछ लीजिए कि कैसे हो रहा है. ऑल्दो इट इज वेरी इजी प्रोसेस, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि मेन अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डेटा नंबर ऑफ वंस आर देयर मोर देन 5, तो आपको उसके बाद 5 कंसेक्यूटिव 1 के बाद 0 जरूर से जरूर ऐड करने हैं. और अगर 5 वंस के बाद 0 ऑलरेडी है, तब भी आपको 0 जरूर ऐड करना है, उसके बाद भी 0 जरूर ऐड करना है.
मतलब आप अपना प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे, because it is beneficial to protect your data from unauthorized access and also error free। और सेफ साइट जब आप जाएंगे, जब यहाँ पे रिसीवर साइट जहाँ पे डेटा आपका जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर देगा, जो आपका ओरिजिनल फॉर्म उसको कर देगा कि जितने भी 5 कंजिक्यूटिव वंस है उनके पास जो जीरो होंगे उनको स्किप कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जरूर ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है डेटा जीरो का है या हमने बिट स्टफिंग से यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐड आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक पैटर्न यहाँ पे आपका फिक्स हो चुका है। एंड आल्सो यू कम्युनिकेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न टू योर रिसीवर। तो रिसीवर तो ये समझ रहा है कि उसके पास जो भी डेटा जा रहा है उसमें जितने भी नंबर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव 1 के बाद जीरो है उसमें से एक जीरो उसको हटाना ही हटाना है, ये ध्यान रखना है। तो आपको भी एक जीरो ऐड ही करना है फॉर द सेफर साइड। ओके, सो द आई फ्रेम इज मेनली, फ्रेम को डिस्कस कर रहे थे इसलिए मेन आई फ्रेम का ही काम है। सो आई फ्रेम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू सक्सेसफुल send from one station sender to another station, that is your receiver। iframe contains 2-3 bit flow and error sequence, this is also known as ns and nr। ठीक है, ns और nr सक्सेस और रिजेक्ट, ns and nr। ये आई फ्रेम का मेन काम होता है कि या तो एक्नॉलेजमेंट में यू विल रिसीव एनएस नंबर ऑफ बिट्स, जो कि नंबर ऑफ पैकेट्स में नंबर ऑफ बिट्स सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड है, या नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ पैकेट्स आपके रिजेक्ट हो गए हैं, मतलब सक्सेसफुली इज नॉट रिसीव्ड। इस तरह का मैसेज इज सेंड बाय द डेस्टिनेशन और द रिसीवर एंड। Okay, the another frame is your S frame, supervisory frame। सुपरवाइजरी फ्रेम में देखिए फ्रेम फॉर्मेट लगभग सेम होता है, लेकिन वहां पे इंफॉर्मेशन पार्ट स्किप हो जाता है। मींस वहां पे फ्लैग रहेगा, साइज वही रहेगा, एड्रेस रहेगा। एड्रेस में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस दोनों रहते हैं। कंट्रोल भी जरूर रहेगा, उसके बाद फिर से आपका FCS रहेगा एंड फ्लैग रहेगा। यहां पे डेटा और इंफॉर्मेशन का जो पार्ट है वो स्किप हो जाता है, क्योंकि इसका मेन काम है सुपरवाइज करना, तो ये इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। विथ कंपेरिजन ऑफ आई फ्रेम द फोर्थ फील्ड इज डेटा इंफॉर्मेशन, बट इट इज मिस्ड हियर in S frame because the main responsibility or the role of S frame, supervisory frame, is to supervise, to travel the data from sender end to your receiver end। This is the main task of S frame। S frame do not transmit data and do not also require, जो आपके दो मैसेज रिस्पॉन्स टाइप है NS and NR, इनको इससे भी कोई मतलब नहीं होता है। Don't care about these two messages NS or NR। This work is only reserved for I frame। Okay, third is U frame। This is your unnumbered frame। It is only for control management, error detection, फ्रेम चेक सीक्वेंस। जो मेन वर्किंग इसकी कंट्रोल मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन with the help of CRC, cyclic redundancy check, and FCS, frame check sequence,
Frame control sequence or frame check sequence is the task of both I frame and S frame. जब भी हमने आपको बताया कि whenever your packet is travel from sender to receiver end, ये जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में वो पैकेट आपके सेंड किए गए उसी ऑर्डर में रिसीवर एंड पे रिसीव हो. ये डिपेंड्स अपॉन द चैनल वॉट एवर अप्रोवाइड बाई द डिफरेंट फ्रेम्स. ठीक है, कभी कभी मैंने आपको ये भी बताया कि उसमें with the help of token ring and the CSMA, जिसमें आपको collision avoidance की वेरिएशन होता है, तो with the help of this version of CSMA, collision avoidance may be path is different of different frames. जरूरी नहीं कि सारे फ्रेम एक ही पाथ पे जाएं, because there may be some causes of your frame to be collided, so that path can be distinguished. तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका डेटा या फ्रेम्स रिसीवर एंड पे रिसीव होंगे उनका सीक्वेंस में भी डिफर. तो फ्रेम चेक सीक्वेंस इज द टास्क, इज द मेथड बाय विच वी और यू कैन रिसीव द फ्रेम व्हाटएवर इन ऑर्डर. आप उसको उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फ्रेम नंबर सीक्वेंस में स्टोर कर लेते हैं. कॉपी जब करेंगे फाइनल डेटा तो वो सीक्वेंस में आप स्टोर कर पाएंगे by the help of this facility of U frame, जो कि इसमें और इसमें लगा होता है. लेकिन this task is actually managed or controlled by the U frame, unnumbered frame. These are the some specific and tedious job of your U frame. So this is all about HDLC, by which by this protocol we are capable to understand the actual logics or the method to avoid any discrepancy of frames from sender to receiver end. This protocol is very helpful. मैंने इसलिए बताया था जब आप SDLC पढ़ेंगे, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल, उसके बाद बहुत सारे उसके फीचर्स is governed by the SDLC and modified according to the need of the task. इस पूरे उसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेप ना समझ में आया हो, कोई प्रोटोकॉल में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये जब मैं बताता हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जरूर पूछा जाएगा. जब आप अननंबर्ड फ्रेम की बात करते हैं, हमने यहाँ पे अननंबर्ड फ्रेम नहीं बनाया हुआ है, उसका फ्रेम फॉर्मेट भी बिल्कुल आई फ्रेम की तरह होता है. The frame format I am writing here of U frame is same as I frame. I will send you detail note. वहां पे आप देख भी पाएंगे कि जो आपका इंफॉर्मेशन फ्रेम का फॉर्मेट होता है सेम वही U यानी अननंबर्ड फ्रेम का फॉर्मेट होता है, बट टास्क इज डिफरेंट. फ्रेम फॉर्मेट सेम होता है बट टास्क इज डिफरेंट. चैट बॉक्स में आप सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए. In next lecture, I will discuss another protocol that is link access procedure, that is balance mode. Actually, link access procedure contains two another variations, balance mode. After that, it also contains two variations, that is your D channel as per the ISDN. ISDN में मैंने आपको चैनल बताए थे, and also modem. तो दो ये variations आपके अलग भी होते हैं in the link access procedure. अब आप अपना टेस्ट कैरी ऑन कर दीजिए. ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है. टेस्ट आप लोग सभी, ये टेस्ट फर्स्ट है आपका सीपी एक्टिविटीज का. जो भी हम लोग ट्यूट ले रहे हैं, प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, और ये 4 टेस्ट आपके होंगे. अभी सभी लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, सारे फैकल्टी सारे सब्जेक्ट में ये होगा. दिस इज योर फर्स्ट टेस्ट ऑफ सीपी एक्टिविटी, CP5. In this test, there are
3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स मींस जिसमें कि मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स, ये वाले आपके 3 क्वेश्चंस होंगे एंड 4 क्वेश्चन एज यूजुअल 1 करेक्ट ऑप्शंस। तो 1 into 4 that is 4 marks and 3 question of 2 marks that is 6 marks. So total mark of this CP activity or test is 10 marks. Okay. उसके बाद सभी लोग इसको सेंड कर दीजिए।